Hare Krishna. Before we start our topic, we will chant some prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiv Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 2 वर्स नंबर 11। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूं न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवानुवाच The Supreme Personality of Godhead said, Ashocyan, that which is not worthy of lamentation. Anvashochaha, you are lamenting. Tvam, you. Pragyavadha, learned talks. Cha, also. Bhashase, speaking. Gata, lost. Asoon, life. Agata, not past. Asoon, life. Cha, also. Na, never. Anushochanti, lament. Panditaha, the learned. The blessed Lord said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor the dead. Purport by Srila Prabhupada. The Lord at once took the position of the teacher and chastised the student, calling him indirectly a fool. The Lord said, you are talking like a learned man, but you do not know that one who is learned, one who knows what is body and what is soul, does not lament for any stage of the body, neither in the living nor in the dead condition. As it will be explained in later chapters, it will be clear that knowledge means to know matter and spirit and the controller of the both. Arjuna argued that religious principles should be given more importance than politics or sociology. But he did not know that knowledge of matter, soul and the supreme is even more important than religious formularies. And because he was lacking in that knowledge, he should not have posed himself as a very learned man. As he did not happen to be a very learned man, he was consequently lamenting for something which was unworthy of lamentation. The body is born and is destined to be vanquished today or tomorrow. Therefore, the body is not as important as the soul. One who knows this is actually learned, and for him there is no cause for lamentation regardless of the condition of the material body. ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे पहले वाले वर्ष में हमने देखा था कि जो अर्जुन है उन्होंने श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया, उनके पूर्ण रूप से उनके सरेंडर हो गए। और यहाँ पे हम देखेंगे कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में वास्तव में जो संबंध है, एक तो वो रिलेटिव भी थे एक दूसरे के, वो एक तरह से बुआ के पुत्र थे। साथ ही उनके बीच में जो भाव था वो साख्य भाव था, मित्रता का भाव था। श्री कृष्ण और उनके भक्तों के बीच में मुख्यतः 5 प्रकार के भाव पाए जाते हैं: शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस। तो श्री कृष्ण और अर्जुना के बीच में जो था वो था साख्य रस का भाव। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कृष्ण भगवान की कृपा से कि वो इंद्रियों के कुछ समय के लिए इंद्रियों के वश में आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण को समर्पण कर दिया और अपना गुरु स्वीकार किया। तो सखा होते हुए उन्होंने अपना उनको गुरु स्वीकार किया। और जैसे ही श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया, श्री कृष्ण तुरंत अपने गुरु की पोजीशन में आ जाते हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण से बड़ा कोई गुरु नहीं। क्योंकि सारी जितनी भी नॉलेज है, वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो, श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं जितने भी वेद पुराण जो भी हैं वो श्री कृष्ण से ही आए हैं और श्री कृष्ण को ही समझने के लिए बनाए गए हैं। तो उनसे बड़ा गुरु कोई हो भी नहीं सकता। और गुरु का मतलब एक तरह से गुरुत्वाकर्षण से भी बना है। इस तरह से गुरुत्वाकर्षण हमें बांधे रखता है, ऐसे ही गुरु की वाणी में इतना प्रभाव होता है, इतना आकर्षण होता है कि वो शिष्य को विषय भोग से लेकर उसकी वास्तविक स्थिति जो आध्यात्मिक स्थिति है वहाँ पे ले जाता है। वो आध्यात्मिक स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कि जो जीव का जो वास्तविक स्वरूप है
कि वो यही है कि वो श्री कृष्ण का नित्य दास है और किसी का दास नहीं है। तो जब तक हम खुद देखेंगे कि हमारे को, जैसे मैंने पहले वाले वर्ष में भी बताया था, हमारे पास बहुत सारी उपाधियाँ हैं। हम बचपन में जब पैदा हुए थे, क्या हम उन उपाधियों को लेके आए थे? नहीं। लेकिन हमारे को वो सारी उपाधियाँ समाज के थ्रू मिलती है। जो भारत में पैदा है उसको भारत के अनुसार उपाधियाँ मिलेंगी, जो पाकिस्तान में पैदा हो उसको पाकिस्तान के अनुसार पैदा होगी, जो अमेरिका में पैदा हो उसको अमेरिका के अनुसार उपाधियाँ मिलेंगी। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है वो उपाधियाँ लेके पैदा नहीं होता। हाँ, उसे कर्म फलों के अनुसार ज़रूर पैदा होता है, लेकिन समझने के तौर पे बताता हूँ कि हम थोड़ा सा बैकलॉग पे जाएँ तो सारी उपाधियाँ हमें दी गई हैं। लेकिन हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, आध्यात्मिक आत्मा का जो स्वरूप है, वो अनादिकाल से चलता आ रहा है। तो गुरु का ये एक तरह से कर्तव्य होता है और उसकी वाणी में इतना गुरुत्वाकर्षण होता है कि वो जो शिष्य होता है उसको अपने जितने भी विषय भोग से हटाते हुए, सारी उपाधियों से मुक्त करते हुए उसकी वास्तविक स्थिति जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास तक लेके आ जाता है। तो भगवत गीता जो है उसको वास्तविक स्वरूप में लाने का ही एक प्रयास है अर्जुन को। तो अर्जुन के माध्यम से पूरे जो सामान्य जीव हैं, सब जितने भी हम लोग हैं, मानव जाति है, उन सबको ये संदेश दिया जाता है कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप क्या है, और वास्तविक स्वरूप हम सब यही हैं, हम सब श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। तो गुरु का जो मुख्य कारण यही होता है, मुख्य प्रभाव यही होता है कि वो विषय भोग से उनको आध्यात्मिक उन्नति की तरफ लेके जाता है। तो जैसे ही गुरु अपनी पोजीशन में आता है तो वो सबसे पहले शिष्य का मतलब होता है शासन, जिसके ऊपर शासन चलता है। शिष्य शश धातु से बना है, जिसका मतलब होता है शासन। तो जो गुरु का जो शास्त्र का जिसके ऊपर शासन चलता है, गुरु की वाणी का जिसके ऊपर शासन चलता है। और ऐसे में कभी कभार गुरु क्या करता है, उसको चेस्टाइज करता है, जैसे यहाँ पे श्री कृष्ण कर रहे हैं। प्रज्ञावादाम से भाषण नानु शोचंती पंडिता, कि तुम बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे पंडित हो, ये ऐसा होता है, हिंसा ऐसी होती है, ऐसे करने से स्त्रियाँ दूषित हो जाती है, ऐसे करने से वो हो जाता है, हमारे को ये इनको भी नहीं माने, ऐसी बड़ी बड़ी बातें, रिलीजियस जो बातें होती हैं। लेकिन तुम उन चीज़ों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने लिए नहीं है। ये जो शरीर हमको मिला है वो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में इसकी मृत्यु निश्चित है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, मतलब इसका तो एक तरह से कभी ना कभी जाके नष्ट होगा ही होगा, इसको कितना हम बचाएंगे। इसलिए हमें सिर्फ इस शरीर के रूप में शोक करना एक पंडित को शोभा नहीं देता। जो शूद्र है वो एक अर्जुन एक आर्य था, और आर्य होते वो ऐसी जो जिसे बोलते हैं ऐसी चीज़ों के लिए शोक कर रहा था, शारीरिक चीज़ों के लिए शोक कर रहा था। इसलिए यहाँ पे श्री कृष्ण एक तरह से ये बोलना चाह रहे हैं कि जो रिलीजियस जो प्रिंसिपल्स हैं, रिलीजियस मतलब जो अच्छे कर्म बोलते हैं, जिसको पायस एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हैं, और जो शास्त्र के अनुसार बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उन सबसे भी बढ़कर जो नॉलेज है वो है आत्मा का, परमात्मा का, और इस संसार कैसे बना है, इन सब के उनकी क्या रिलेशन है। वो सबसे जो बेस्ट नॉलेज है और सबसे जो उच्च कोटि की नॉलेज है वही है। तो यहाँ पे जो अर्जुन है ऐसे बड़ी रिलीजियस बातों को देके एक तरह से युद्ध से छुटकारा पाना चाह रहा था, लेकिन श्री कृष्ण बोल रहे थे कि तुम ऐसी चीज़ों के लिए शोक कर रहे हो जो वास्तव में सोचनीय नहीं है। जो आत्मा को जानता है, जो आत्मा जो अजर है, जो अमर है, जो इस चीज़ को मानता है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुका है, जो जैसे बोलते ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, मतलब जिसने ये जान लिया है कि वो शरीर ना होते हुए सिर्फ एक आत्मा है। और आत्मा होते हुए हम देखें एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं कि जब ये मृत शरीर हो जाता है, मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव है या कोई आपका जो पास का जो संबंधी है, उसकी जब मृत्यु होती है तो हम बोलते हैं वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया, लेकिन वो कहीं जाता नहीं, उसका बॉडी की ऐसी पड़ी रहती है आपके सामने। लेकिन वो कहाँ चला गया? अगर वो चला गया तो हमने वास्तविक में उसको देखा ही नहीं है, उसका वास्तविक स्वरूप हमने उसका देखा नहीं है कभी कि वो क्या था। जो पहले जो वैदिक पद्धति थी, जो वर्णाश्रम जो सिस्टम था, उसमें सबसे पहले यही नॉलेज, जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी, यही दी जाती थी सभी शिष्यों को। तो हम इन्हें वास्तव में जान ही नहीं पाते कि हम कौन हैं, हमारे सामने वाला कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है, हमारा परमेश्वर से संबंध क्या है, और पूरे जीवन हम अंधकार जीवन में जीते हैं। तो आज का जो मनुष्य समाज है भले ही सिविलाइज्ड हो गया हो, लेकिन वास्तव में वो सिविलाइज्ड एनिमल ही है, जानवर ही है। क्यों? क्योंकि उसका वास्तविक नॉलेज नहीं है। और ऐसी नॉलेज के अभाव में, जैसे भी आपने देखा होगा कुछ समय पहले, सिविलाइज्ड कितने हाई फाई क्लास के लोग होते हैं, राजकुंद्रा का एग्जाम्पल मैं देता हूँ, लेकिन जस्ट एनिमल से कम नहीं है ये लोग। इसको तो फिर भी सज़ा मिल रही है। और ऐसे तो आप देखिए, आप साइट्स आप सब जानते हैं, इतनी सारी साइट्स होती हैं, सब खुली पड़ी हैं।
अब आप मोदी जी को बोल दीजिए एक बार बंद कर दीजिए, बैन कर दीजिए इन सारी साइट्सों को, और पूरे देश में हाहाकार हो जाएगा, सब इनके विरोध में चले जाएंगे। जैसे उन्होंने नोटबंदी बंद कर दी थी, सब विरोध में चले गए, भले ही भले के लिए हो। क्यों? क्योंकि किसी के पास भी आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है अभी। सब सिर्फ मात्र और मात्र शरीर के पीछे भाग रहे हैं और शारीरिक नॉलेज के पीछे ही है सबके पास। तो ऐसे ज्ञान के अभाव में सिर्फ जानवर की पाती रहेंगे। और जानवरों का क्या काम होता है? आपस में लड़ना, झगड़ना, यही काम होता है। और जब तक हम आध्यात्मिक नॉलेज के अभाव में चाहे कितनी ही भी कोशिश कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, हम कुछ भी कर लें, हम किसी भी राष्ट्र को, किसी भी विश्व को, किसी भी देश को, या किसी भी समाज को, या किसी भी व्यक्ति को नहीं सुधार सकते। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश का उद्धार हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे देशवासियों का उद्धार हो, तो हमें वास्तविक आध्यात्मिक नॉलेज देनी ही पड़ेगी। बिना आध्यात्मिक नॉलेज के सिर्फ यही होगा। अगर हमारे पास चाहे कितना ही हाई फाई आ जाए, कितना भी इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर दो, चाहे इनको कितना भी एक तरह से हाई क्लास सोसाइटी दे दी जाए, सिर्फ जानवरों की मात्री आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही अपना जीवन व्यस्त करेंगे और इसी में खराब करेंगे, खुद को खराब करेंगे और समाज में दूसरे लोगों तक भी फैलाएंगे। इसलिए इनको कड़े से कड़ा दंड भी देना चाहिए। साथ ही ऐसी सारी साइट है, ये तो सिर्फ इनको दंड मिल रहा है, इतनी सारी साइटें खुली, सबको बैन कर देना चाहिए कायदे से। तो एक जो स्पिरिचुअलिस्ट होता है, एक क्या होता है, राजा का कर्तव्य होता है कि राजा के समाज में अगर कोई पाप करता है ना, तो उस पाप का भोगी भी राजा ही होता है। अगर राजा के समाज में कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसका भोग राजा के पास भी जाता है। ऐसे ही पाप अगर हो रहे हैं कि राजा के समाज में, तो उसके पाप भी राजा के पास ही जाते हैं। इसलिए राजा का कर्तव्य होता है कि अपने समाज को, अपने इस तरह से अपने शिष्य को, जैसे अपने बच्चा होता है, आप कोई अपने बच्चों को चाहेगा वो ऐसे कार्य करे? कोई नहीं चाहेगा। तो राजा एक तरह से राजा की प्रजा जो होती है उसके बच्चों के समान होती है, और बच्चों को कभी कभार चेस्टाइज्ड भी करना पड़ता है कंट्रोल करने के लिए। अगर आप जैसे इनको बैन करना पड़ेगा, हाहाकार होगा, वो होगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल टास्क है। मैं इस चीज़ को जानता हूँ, बोलना बहुत आसान है। अभी जो सुन रहे हैं आधे से ज़्यादा लोग वही इसके विरोध में चले जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो चीज़ है ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक लोगों के पास बेसिक नॉलेज नहीं आएगी। उनको ये नहीं पता चलेगा कि उनके जो जीवन का उद्देश्य क्या है, वो किस लिए पैदा हुए हैं, प्रभु परमेश्वर ने उनको क्यों पैदा करा है। सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो जानवरों के पास भी है, जानवर भी करते, उनको कोई सिखाया नहीं जाता, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं भेजा जाता सीखने के लिए। हाँ, किसी भी जानवर को पता है कि उसको कैसे खाना है, क्या खाना है, किस तरह से खाना है, किस तरह से सोना है, किस तरह से सेक्स इम्पल्स का यूटिलाइज करना है, जानवर को भी पता है सारी चीज़ें, उसको सिखाया नहीं जाता। बस ये मनुष्य ही है जो अपने आप को इन्हीं चीज़ों में इंडल्ज करके और एक तरह से हाई प्रोफाइल करके अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। तो पहले तो क्या होता था कि जो जिसके पास नॉलेज होती थी उसकी रिस्पेक्ट होती थी, लेकिन कलौ शूद्र संभवा, कलौ युग में शूद्र समाज है, तो यहाँ पे तो किसी के भी कोई रिस्पेक्ट की कोई एक्सपेक्ट नहीं की जाती और करना भी नहीं चाहिए। मूर्ख ही जो लोग होंगे जो ऐसे समाज में अपने आप की रिस्पेक्ट को एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमें अपने जैसे जो कुछ जो गिनती में आते हैं स्पिरिचुअलिस्ट, इतने बड़े समाज के अंदर जो स्पिरिचुअलिस्ट है वो गिनती में काउंट कर सकते हो आप उनको। तो उनको अपना धर्म फॉलो करते रहना चाहिए, जो भी उनका आध्यात्मिक धर्म है, और जो आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन फिर भी हमें अपने प्रयास में आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताया कि चेस्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है, बिना चेस्टाइजमेंट के कोई नहीं सुधरता। हम ये चाहते हैं कि जैसे कि बहुत जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, ये शिष्य होते थे उसको दंड भी दिया जाता था। आज के ज़माने में तो आप शिष्य को कुछ बोल दो तो जो उसके पेरेंट्स आ जाएंगे लड़ने के लिए। दूसरी बात, टीचर्स भी ऐसे नहीं है। टीचर्स जाएंगे, फैमिली में कुछ लड़ाई वड़ाई होती है, वो सारा फ्रस्ट्रेशन आके अपने बच्चे जो शिष्य होते हैं उस पर निकाल के चले जाते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको दंड देते हैं तरह तरह के। हम देखते हैं कि बहुत सारे दुष्कर्म भी होते हैं, उनको बुरी तरह मारा जाता है बच्चों को। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो हमें वास्तव में कुछ तो हमें देखने को मिल जाती है। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो होती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक आध्यात्मिक नॉलेज के अभाव के कारण हो रहा है। जो अंग्रेज थे उन्होंने हमारा सबसे पहले क्या तोड़ा? रीढ़ की हड्डी तोड़ी। वो क्या था? हमारा वैदिक एजुकेशन सिस्टम। वैदिक एजुकेशन सिस्टम क्या था? उसमें जो गुरुकुल सिस्टम था उसमें सबसे पहले उनको आध्यात्मिक नॉलेज दी जाती थी, उनको कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है वो दिया जाता था, कैसे उनको जीवन में जीना है वो दिया जाता था, सारी चीज़ें बताई जाती थी। लेकिन अब उस चीज़ के अभाव के कारण
हम सब मात्र जानवर हैं और कुछ भी नहीं है। अंग्रेज हमें एक तरह से रीढ़ की हड्डी पे प्रहार करके हमें लंगड़ा करके चले गए, और अब हम प्रयास कर रहे हैं उड़ने के लिए। और हम प्रयास भी क्या कर रहे हैं, उन अंग्रेजों के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी रीढ़ की हड्डी सही करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो राष्ट्र ऐसे कभी कभार इसमें एक तरह से कभी कभार अंदर से मेरे प्रश्न आता है कि लोग बाग ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म फर्स्ट है कि नेशनलिज्म फर्स्ट है। तो वास्तव में देखा जाए तो नेशनल एटलीस्ट भारत के अंदर पहले तो भारत जो है ये एक भूमि का नाम नहीं है। आप भूमि के लिए अगर लड़ रहे हो तो वो भारतिज्म नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है। जो नेशनलिज्म की लड़ाई किस कारण से हुई थी, हमारी संस्कृति की लड़ाई थी वो, कि हम हमारी संस्कृति की रक्षा कर सकें। और हमारी अगर संस्कृति खत्म हो गई, हमारी संस्कृति खत्म हो गई तो फिर काहे की आज़ादी, किस चीज़ की आज़ादी, काहे का इंडिपेंडेंस। हम वास्तव में सब गुलाम होते जा रहे हैं, गुलाम होते जा रहे हैं उस औरंगजेब की मानसिकता का, मलेच्छ की मानसिकता का। और जब तक हम उसके गुलाम रहेंगे, उस मानसिकता के गुलाम रहेंगे, तब तक बहुत मुश्किल है अपनी संस्कृति को दोबारा से उजागर करना। असंभव है इस संस्कृति को दोबारा से अपनी पुनः स्थिति पर लेके आना। तो इसलिए जो इसका जो मेन दायित्व होता है वो आध्यात्मिक लोगों का है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी कभार ऐसे लोग जिनका हम भला करते हैं, कभी कभार वही हमारे विरोध में चले जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि ये राह बहुत मुश्किल है। भगवान का संसार इसी तरह बनाया गया है, लेकिन फिर भी हमें हर परिस्थितियों में, हर एक तरह से फेवरेबल सर्कमस्टांसेस हो या अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस हो, हमें अपने कर्तव्य को फॉलो करते रहना चाहिए, चाहे फिर रिजल्ट कुछ भी आए। हमारा जो दायित्व है वो सिर्फ कर्तव्य फॉलो करना है, क्योंकि हमारे को हमारे परमेश्वर देख रहे हैं। और जब हमें परमेश्वर की राह के लिए, परमेश्वर की नज़र पाने के लिए और परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं, तो फिर चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, वो हमारा परमेश्वर है जो हमें देख रहा है। अंत में हमें उन्हीं के पास जाना है। तो इसलिए जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनका दायित्व होता है कि सबसे पहले वो चेस्टाइज करते हैं। और शिष्य ऐसे नहीं होने चाहिए। शिष्य कभी कभार क्या होता है, गुरु बुरा भला कह देता है। मीठी बातें करना बहुत आसान है इस संसार में। जब मीठा बोला जाता है ना तो वो बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, और लेकिन जो कड़वा बोलता है ना उसको सब दूर हट जाते हैं। लेकिन वास्तव में दवाई तो कड़वी अच्छी होती है। मीठी दवाई अगर आप खाने मीठी के चक्कर में पड़ोगे तो फिर वो ट्रीटमेंट ढंग से नहीं होगा। आपको दवाई कड़वी ही आएगी जो आपके असर करेगी, और आपके अंदर में जो मलिनता भरी हुई है उस मलिनता को साफ करते हुए आपके वास्तविक स्वरूप को दोबारा उजागर करेगी। और वो वास्तविक स्वरूप क्या है कि हम वास्तव में ये शरीर नहीं आत्मा है। अगर हम वास्तव में खुद भी देखिए, कभी कभार ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अभी आप तो एकांत में है, कोविड काल भी चल रहा है, वैसे भी थोड़ा सा खुला है, लेकिन कभी आप एकांत में ये चीज़ों को देखेंगे तो अपने आप को सोचिए इस चीज़ को। कभी कभार बैठ के विचार करिए, क्या मैं ये शरीर हूँ? हम बोलते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है, ये मेरी आँख है, ये मेरी नाक है, ये मेरा गर्दन है, ये मेरा पेट है, ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं ये मेरा 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 मेरा। लेकिन वास्तव में मैं कौन है जिसका ये सारा शरीर है? उस वास्तविक स्वरूप को हम नहीं समझ पाते। वेदों में अहम ब्रह्मास्मि, हम वास्तव में एक आत्मा है, और वो आत्मा ही है जो इस शरीर में एक तरह से फोर्स के रूप में आती है। और बहुत स्पष्ट है ये सारी चीज़ें, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, और एकदम स्पष्ट क्लियर है। अगर आप भगवत गीता को ढंग से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप वास्तव में हैं कौन, ये शरीर क्या है, आप क्यों पैदा हुए हैं, परमेश्वर कौन है, आपका उनसे संबंध क्या है, आपको ये जीवन मिला क्यों है? जानवरों के लिए व्यतीत करने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन मिला है आपको परमेश्वर को पाने के लिए, खुद को खोजने के लिए, खुद को एक तरह से आज़ाद करने के लिए इस भवसागर से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो कार्य करें हमें वो छोड़ना पड़ेगा। वेदों में लिखा है स्थाने स्थिते श्रुतिगतान तनुवां मनुवी। आप जिस परिस्थिति में, जिस कार्य में लगे वो करते रहें, उसको छोड़े नहीं, त्यागे नहीं, लेकिन वहाँ पे रहते हुए आप मात्र सुने, और उस स्पिरिचुअल वाणी को सुनकर, उस स्पिरिचुअल वाणी को एक तरह से आपके स्पंदन जब आपके हृदय को टच करेगा तो उस टच करने से सारी जो मलिनता है आपके हृदय से साफ होगी, और आपका वास्तविक स्वरूप समझने में आपको आसानी होगी। इसलिए भगवत गीता मात्र पढ़ने से समझ में नहीं आती है, हमें इसलिए गुरु की देख रेख में जाना पड़ेगा। गुरु हमें एक तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज देके बताएगा, प्रैक्टिकल चीज़ें बताएगा करके, डिवोशनल सर्विस से एक्ट करेगा, हमें डांटेगा, हमें सारी चीज़ें करेगा, तब जाके हमारा एक तरह से बोलते हैं ना
एक तरह से ठुकाई कर करके हमारा वास्तविक स्वरूप बनेगा। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारा कचरा भरा पड़ा है और हमारा वो कचरा पकड़े डामर की तरह चिपक गया है हमारे पास, और उसको हटाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। इसलिए गुरु हमारे को चेस्टाइज करता है, हमारे अहंकार पे चोट मारता है, हमारे हर तरह से हमारी जो बुरी आदतें उस पर चोट मारता है, हमारे हर क्लियर से हमें साफ करता चला जाता है और हमें परमेश्वर की राह में आगे बढ़ा चला जाता है। तो यही वास्तविक गुरु है। गुरु का दायित्व भी यही है कि जो श्री कृष्ण की परंपरा में आ रहे हैं, जो श्री कृष्ण के गुरु मानते हुए श्री कृष्ण को ही अपना एक तरह से गुरु मान रहे हैं, उन्हीं की परंपरा में आ रहे हैं, उनका दायित्व यही है कि वो श्री कृष्ण ने जो बताया है वो सिर्फ वही बताएं, जो श्री कृष्ण चाहते हैं वही करें। तो वास्तव में वो परंपरा बनी रहती है ना। तो परंपरा टूट जाएगी, हम श्री कृष्ण कुछ और बता रहे हैं, हम अपना दिमाग लगा के कुछ और बता रहे हैं, तो जो श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे, वो शुद्धता मिट जाएगी। वो शुद्धता अगर मिट गई तो फिर श्री कृष्ण का जो मैसेज है उसको समझने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, हो सकता है समय परिस्थिति के अनुसार कुछ ऐसे कुछ एग्जाम्पल देके उसको समझाने का प्रयास करें कि समझाया वही जाए। जैसे 1+1=2 होता है, तो समझाने वाला उसको बच्चों के हिसाब से एप्पल के हिसाब से भी समझा सकता है, उसके जगह पेड़ भी बता सकता है, उसके जगह मैंगो भी बता सकता है, कुछ भी बता सकता है। लेकिन एग्जाम्पल सिखाएगा 1+1=2 अगर 1+1 उसको 4 सिखा रहा है, 6 सिखा रहा है, 7 सिखा रहा है, 8 सिखा रहा है, तो वो गलत हो जाता है। इसलिए जो श्री कृष्ण समझा रहे हैं हमें सिर्फ वही मैसेज शुद्ध रूप में समझाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए जो गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध होता है, गुरु और शिष्य के बीच में जो वास्तविक संबंध होता है, वो ही होता ही है ये आध्यात्मिक संबंध। और उसमें चेस्टाइजमेंट भी होता है, उसमें एक तरह से दुलार भी होता है, उसके अंदर एक गाइडेंस होती है। आप कहीं पे आपको पूरा ज्ञान दिया जाता है, एक तरह से हर तरह से आध्यात्मिक, आप कहीं पे भी कुछ नहीं बचता। और एक बार आप उस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो आपको लगेगा कि अब जीवन में प्राप्त करने लायक कुछ है ही नहीं, वो सेटिस्फैक्शन आएगा। और अगर आपके जीवन में अगर वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, आप अगर खुद देख लीजिए अपने जीवन में, आप कहीं पर भी हैं, किसी भी सेवा में लगे हुए हैं, अपने आंतरिक उससे पूछिए, मेरे को जवाब देने की जरूरत है, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्या आप अपने आप से सेटिस्फाई हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम बिना आध्यात्मिक नॉलेज के हर किसी को सेटिस्फाई कर सकें, असंभव। इवन हम खुद ही सेटिस्फाई नहीं होंगे। हमने पकड़ रखा है एक, लेकिन हाँ, जो स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, पूर्ण रूप से स्वार्थ के लिए, वो तो मात्र जानवर ही है। जैसे मैंने एक हायरार्की पहले बता रखी है, अपनी हायरार्की क्या होती है कि सबसे पहला जो स्थान आना चाहिए हमारे जीवन में, वो परमेश्वर का आना चाहिए। परमेश्वर के बाद हम ब्रह्मांड का सोचें, ब्रह्मांड के बाद हम अपनी दुनिया का अर्थ का सोचें, अर्थ के बाद हम विश्व का सोचें, विश्व के बाद सोचें हम अपने देश का, देश के बाद सोचें हम अपने राज्य का, समाज का, परिवार का, फिर स्वयं का। एक ये हायरार्की तो होती है, आध्यात्मिक हायरार्की है। और जो आज के जो भौतिकवादी, उनकी हायरार्की उल्टी चलती है। तो जो पूर्ण रूप से स्वार्थ के रूप में जो चल रहे हैं, वो तो मात्र जानवर ही हैं, उनका जीवन जो है व्यर्थ है अगर वो जानवरों की तरह जी रहे हैं तो। इसलिए गुरु का बहुत विशेष रोल है। तो गुरु एक तरह से हमें दूसरा जन्म देते हैं। दूसरा जन्म कौन सा होता है? दो तरह के, एक तरह तो होता है कि एक तो नारकीय दृष्टि और एक होता है आध्यात्मिक दृष्टि। नारकीय दृष्टि जन्म नहीं है, पतन है, और आध्यात्मिक दृष्टि जन्म है। क्योंकि गुरु हमें क्या करता है, वहां से खींचते हुए दोबारा से यहाँ लाके एक तरह से लेके आता है इस दुनिया के अंदर, आध्यात्मिक दुनिया में लाके छोड़ता है हमको। तो वो एक तरह से जन्म हुआ, दूसरा जन्म हुआ। और उसके बिना हम नार की दृष्टि अगर रखेंगे तो मात्र जानवर ही कहलाएंगे। और ऐसी हमारी मृत्यु हो गई तो मान लीजिए, तो जो मनुष्य दुर्लभ, जो बहुत दुर्लभ जो शरीर हमको मिला है मनुष्य जीवन में, वो हमने यूं ही गंवा दिया। अगर हमारी आध्यात्मिक इकोनॉमिक हानि हो जाती है, इकोनॉमिक नुकसान हमें हो जाता है, कोई बात नहीं। शारीरिक नुकसान हमें हो जाता है, बीमारी होती है, कोई बात नहीं। लेकिन हमें अगर आध्यात्मिक नुकसान हो गया और हमने अपने आप को समझे बिना, परमेश्वर को समझे बिना, परमेश्वर से अपना जुड़ाव लगाए बिना ये मनुष्य जन्म शरीर गंवा दिया जानवरों की तरह, तो इसके आगे वाला जीवन बहुत ही दर्दनाक है। एक तरह से बहुत ही सबसे बड़ी एक तरह मुश्किल में चले जाएंगे, अपॉर्चुनिटी खो देंगे सब। परमेश्वर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है। मैंने इससे पहले मैंने देखा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप बहुत ज़रूरी है। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे धीरे धीरे करके,
ये सारा जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, सबके हृदय में विद्यमान है ज्ञान। परमेश्वर जब सबके हृदय में विद्यमान है तो उनसे बड़ा ज्ञानी कोई है क्या? परमेश्वर से बड़ा तो परमेश्वर से कोई ज्ञान ही नहीं है। तो जब सारा ज्ञान आपके हृदय में, तो उसको उदय करना है। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। उस श्रवण से हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण करते चले जाइए, गुरुजनों की, साधुजनों की वाणी सुनते चले जाइए, तो आपका हृदय शुद्ध होता चला जाएगा। और ऐसा नहीं है, अगर आपका एक बार हृदय शुद्ध हो गया, आप आध्यात्मिक रूप में स्थित हो गए, तो आप वास्तव में सच्चे अपने देश के लिए भी कार्य कर सकेंगे, समाज के लिए भी कार्य सकेंगे, विश्व के लिए भी कार्य कर सकेंगे। और इसके बिना हम चाहे कहीं पे भी, हम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और करने का वास्तव में हमारे भले ही हमारी जो अंदर की जो हमारी जो इच्छा है वो शुद्ध हो, सेवा भाव हो, देश के लिए सेवा करने का भाव हो, लेकिन वो कर भी देंगे तो देशवासियों को देखिए कहाँ पे जा रहे हैं सारे। एक बार आप पॉन्ड बैन करके देखिए, तब पता लगेगा आपके देशवासियों की हालत क्या है। ये परिस्थितियां हैं आज के समाज की। तो इसलिए आज के समाज में सबसे बड़ी जो अभी मेरे हिसाब से भी जो सबसे बड़ी जो नीड है, जो आवश्यकता है, वो है सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश की। अगर हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश होगा और हमारे वैदिक संपदा जो हमने खो दी है, लेकिन जैसे तैसे करके जो गुरु परंपरा से बची हुई आ रही है, हम उसको बचा के रखेंगे, हम उसको आगे वाली जनरेशन्स में देंगे। अभी प्रेजेंट वाली जनरेशन में जो मुश्किल है, क्योंकि डामर चिपक गई है उनको, और डामर चिपकाने में बहुत मेहनत लगती है, और डामर चिपक, लेकिन फिर भी प्रयास करना पड़ेगा। तो अगर हम ये कर लेते हैं तो हम वास्तव में बचे रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है, अशोच्यान अनवशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गताशून अगताशूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। जो वास्तव में जो पंडित होता है, वो अपने आप में ऐसे में शोक नहीं करता, शरीर के लिए शोक नहीं करता। शरीर जो है एक तरह से प्रारब्ध लेके आया है एक अपना, वो प्रारब्ध है, वो मिलेंगे आपको। लेकिन ये जो आत्मा जो मिली है, जो गुरुवर से हमारा जो संबंध स्थापित हुआ है, जो परमेश्वर से संबंध स्थापित करने का हम प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत दुर्लभ है, ये बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यद्यति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। मतलब सहस्त्रों हजारों लोगों में से कोई एक ही विरले होता है जो श्री कृष्ण को समझ सकता है। इसलिए हमें इस ज्ञान को समझने का प्रयास करना चाहिए। सच्चे गुरु की तलाश करिए आज के ज़माने में। तो आज का लाइव गीता मैसेज यही है कि जो आज के जो समाज है, जो पहले हमारा वर्णाश्रम सिस्टम था, उसमें जो 5 साल की उम्र में बच्चों को भेजा जाता था, वो गुरु की देख रेख में रहते थे। क्योंकि जो माता पिता होते हैं वो अपने जैसे पारिवारिक जो होता है उसमें व्यस्त रहते हैं परिवार में। तो ऐसे में जो गुरु का के दायित्व बनता था कि वो पूर्ण रूप से, और गुरु ऐसे नहीं हर किसी के हाथ में बच्चों को नहीं दिया, और गुरु भी ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से समाज कल्याण के लिए होते हैं। समाज का कल्याण वास्तव में करेगा कौन? जो वास्तव में स्पिरिचुअल, जिसने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। तो पहले सबसे पहले आध्यात्मिक नॉलेज ही दी जाती थी सबको। तो आज का इसी चीज़ का मुख्य अभाव है, और इसी कारण से हम देखते हैं कि सोसाइटी में इतनी कैओटिक कंडीशंस अवेलेबल हो जाती है। कहीं पे ये हो रहा है, कहीं पे रेप हो रहे हैं, कहीं पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, कहीं दंगे हो रहे हैं, कोई जानवरों को मार मार के खा रहा है, स्लॉटर हाउस खोले जा रहे हैं, कोई किसी को भी मार के चला जाता है, कुछ पता नहीं चलता, बाद में केस होते रहते तो होते रहते हैं। तो लेकिन ये सारी चीज़ें हैं कि ये सारे समाज में अगर हम जो बेसिक जो नीड है वो यही है कि हम सब आध्यात्मिक नॉलेज के अभाव में हैं। तो आज का लाइव गीता मैसेज यही है कि जो पहले जो हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था, जो वर्णाश्रम सिस्टम था, कि 5 साल में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था, और 5 से 25 साल वो गुरु की देख रेख में एक तरह से पूर्ण रूप से दीक्षित होके आता था हर चीज़ में वो एक तरह से नॉलेज लेके आता था। और गुरु कैसे होते थे? पूर्ण रूप से आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस जिन्होंने अपनी एक तरह से जागृत कर ली होती थी, वही वास्तव में समाज कल्याण कर सकते थे। अगर हम ऐसे गुरु के, आज के जो गुरु हैं वास्तव में वो गुरु भी अब गुरु कहलाने के भी लायक नहीं हैं, और शिष्य भी आजकल के ऐसे ही हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र ही एक आशा का एक किरण है कलयुग के अंदर। इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप सदैव करते रहना चाहिए। साथ ही प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी जो वैदिक पद्धति है, एटलीस्ट भारत में जो वैदिक पद्धति थी हमारी, उसको पुनः से एक तरह से स्थापित करने का प्रयास करें। मेरा भी ऐसा ही एक प्रयास है, मेरा जो गुरुकुल खोलने का प्रयास है,
और मैंने अपना जो एक तरह से हमारे जो बैंक अकाउंट है और IFSC कोड आपको दे रखा है इसके अंदर। अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें जल्द कर, प्रयास तो जारी रहेगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसमें बिना डिले के सारी चीज़ें हों, इसलिए इसमें आप अगर थोड़ी मदद कर सकें तो मेरा बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड है, अगर आप जितनी प्रकार से कर सकें तो कर सकिए। साथ ही हमारा जो चेस्टाइजमेंट जो गुरु का होता था पहले, वो दंड दिया जाता था, दंड भी ऐसे दिया जाता था कि इसमें उसका भलाई होता था, ताकि उसको पहले मुर्गा बना दिया जाता था, बाहर एक टांग पे खड़े कर दिया जाता था, ये भी आसन ही थे पहले के, तो उससे उसकी शारीरिक स्ट्रेंथ भी बनती थी, उसको दंड भी मिल जाता था। तो चेस्टाइजमेंट होना चाहिए, और बिना चेस्टाइजमेंट के शिष्य को पूर्ण रूप से उभारा नहीं जा सकता। अगर आप शिष्य को पूर्ण रूप से उभारते हैं तो चेस्टाइजमेंट, उसका एक तरह से शासन उसके ऊपर लाना, उसको डिसिप्लिन के अंदर लेके आना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे शिष्य जब होते थे पहले के ज़माने, वो हम सब जानते हैं, चाहे वो छत्रपति शिवाजी हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे वो परीक्षित महाराज हो, या उनसे आने वाले जितने भी राजा हैं, कोई सी भी राजा, वो सिर्फ इसी कारण से आए थे क्योंकि वो गुरुकुल में दीक्षित थे। और हमारा जो गुरुकुल सिस्टम है नष्ट भ्रष्ट हो चुका है, और हम आशा करते हैं कि हम पुनः से वैसे ही सारी चीज़ों को जागृत कर सकें, तो वो पॉसिबल नहीं है। साथ ही आज के समय के अनुसार हमें देखना चाहिए कि हम जितनी आध्यात्मिक नॉलेज ले सके अपने स्थान पे रहते हुए। अगर आप किसी भी परिस्थिति में कहीं पे भी आप ड्यूटी कर रहे हैं या कोई सी भी आप सर्विस में हो, इसलिए हमारे वेदों में कहा गया है कि स्थान स्थिति श्रुतिकथान तनुवा मनोमी, कि आप जिस स्थान में हैं, जिस परिस्थिति में, वहीं पर रहिए और वहाँ से सुनिए जो हमारे वेद बता रहे हैं, हमारे संत बोलते हैं, उसकी वाणी को सुनिए। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, उसको सुनिए। नित्य सिद्ध सिद्ध प्रेम साध्य कबूने शरणादि, उस शरणादि से आपके जो हृदय के अंदर जो दिव्य ज्ञान प्रसाद है वो स्वतः जागृत हो जाएगा। अलग से उसको पाने की या संतुलित करने की आवश्यकता का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य जीवन है, सिर्फ शरीर के ही नॉलेज के पीछे भागना, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, अगर हम सिर्फ इसी के पीछे भागते रहे और जो बेसिक जो चीज़ है, जो आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, हमारा परमात्मा से क्या संबंध है, वो ज्ञान पाए बिना यदि हमने मनुष्य शरीर का त्याग करा, तो हम वास्तव में एक बहुत बड़ी एक तरह से अपॉर्चुनिटी खो देंगे जो परमेश्वर ने हमको दी है। इसलिए हमें इस अपॉर्चुनिटी को जो परमेश्वर ने हमको दी है उसका पूर्ण लाभ लेते हुए अपने आप को आध्यात्मिक उन्नति की तरफ लगाना चाहिए। और ये बहुत आसान है इस कलयुग के अंदर, भले ही कलयुग में जो है एनवायरनमेंट बहुत ही एक तरह से विरोधी हो, लेकिन लिखा गया है कि कलो दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुना, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगम परम व्रजे। श्री कृष्ण के नाम उच्चारण मात्र से, कीर्तन मात्र से हम इस जो है आध्यात्मिक उन्नति को पा सकते हैं। इसलिए सदैव हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए और अपने आप को शारीरिक सिर्फ एक तरह से उन्नति की तरफ न लगाते हुए आध्यात्मिक उन्नति की तरफ भी ध्यान लगाना चाहिए, उसकी तरफ एक तरह से एकाग्रित होना चाहिए। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आज का जो भजन है वो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है, और किस तरह एक शिष्य को अपने गुरु के चरणों में समर्पित होना चाहिए, उसी भाव को इस भजन में उन्होंने प्रस्तुत किया है। और ऐसी भाव को लेते हुए, श्री गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करने के भाव को लेते हुए ये भजन प्रस्तुत है।
कृपा बिंदु दिया करु दासे तृण पे काते ना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करु दासे तृण पे काते ना सकल सहने बल दिया करो निज मन स्प्रियहीना सकल सहने बल दिया करो निज मन स्प्रियहीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करु दासे तृण पे काते ना सकल सम्माने करियो ता शक्ति देहोनाथ जात जात सकल सम्माने करियो ता शक्ति देहोनाथ जात जात तभी तो गाइबे हरि नाम सुखे अपराध हबे हाथ गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करु दासे तृण पे काते ना कभी हेनो कृपा लभियाए जान कृतार्थ हई बेनाथ शक्ति बुद्धिहीन अमियाति दीन कर मोरे आत्म साथ हो गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करु दासे तृण पे काते ना योग्यता विचारे किछु नाही पाई तोमार करुणा सारा हो योग्यता विचारे किछु नाही पाई तोमार करुणा सारा करुणा न होइले कांदिया कांदिया करुणा राखी मोआरा हो करुणा न होइले कांदिया कांदिया प्राण न राखी मोआरा हो गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करु दासे तृण पे काते ना हरे कृष्णा
Rama Rama, Hare Hare. Gurudev, give to this servant just one drop of mercy. I am lower than a blade of grass. Give me all help, give me strength, let me be as you are, without desires or aspirations. I offer you all respects, for thus I may have the energy to know you correctly. Then, by chanting the holy name in great ecstasy, all my offenses will cease. When will such mercy fall to this one who is weak and devoid of intelligence? Allow me to be with you. If you examine me, you will find no qualities. Your mercy is all that I am made of. If you are not merciful unto me, I can only weep. I will not be able to maintain my life. Hare Krishna.